Hello everyone, myself Arun Chaudhary and you are watching AC Study Point. So in today's special video, we are going to discuss the tricks to find the square of any two-digit number. Yes, you are right. We are here discussing the tricks to find the square of any two-digit number applying the Vedic math. So let me introduce first you that Vedic math is one type of maths in which orally every calculations are done. Okay, so Vedic math is very applicable in first calculation. Okay, so whenever we are doing any mathematical operators, that is the addition, subtraction, multiplication and division, so it takes what 1/10 of the time if we proceed in the general rule. Is that clear? So that's why Vedic math is so important. Okay, so here especially in today's class we are discussing about the square, how to find the squares of two-digit number, especially the two-digit number. Okay, so the Vedic maths come from the Vedas. Okay, Vedic math come from the Vedas and it has 16 sutras. Okay, so 16 sutras and some sub sutras are also there to find the Vedic math. But here particularly we are discussing about the tricks. We will not go to the history of Vedic math. Okay, but it is very important to know the basic idea of Vedic math. That means it save your time. So Vedic math for the school students to find the surface area, volume, circles and many in geometrical calculation, Vedic maths is applied. Okay, so that if you will apply this Vedic math, so you can do the faster. And also for the competitive examination like the railway, rankings, SSC, okay, in which very less times are given to do the sums. So there Vedic math comes into role. Okay, if you will learn the tricks, if you will be the master of applying the Vedic maths, then you can save much more time. Okay, so here, so let us start the tricks. Okay, so actually the two-digit number comes in the three forms. So our today's lecture will be in bilingual, so that the Hindi medium and English medium both students get benefit from this. Okay, so in this today's video we are discussing about the tricks to find the two-digit number. तो सबसे पहले देखिए two-digit number आपकी it occurs in three forms. Is that clear? Two-digit number occurs in three forms. The first form is जैसे कि पहला जो आपके two-digit number है थ्री कैटेगरीज में होते हैं. सबसे पहला उस नंबर जिसके यूनिट प्लेस में जीरो होते हैं. ठीक है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा. एक जो ऐसा नंबर जिसके यूनिट प्लेस में जीरो होते हैं ये फर्स्ट कैटेगरी में आते हैं. और दूसरे कैटेगरी में होते हैं एक ऐसा नंबर जिसके यूनिट प्लेस में 5 हो. ओके, और थर्ड कैटेगरी के जो नंबर होते हैं जिसके यूनिट प्लेस में ना ही जीरो ना ही 5 हो. एग्जाम्पल से समझते हैं. जैसे कि हमारा ये हो जाते हैं 10, ओके, 20, 30, 40 लाइक दिस. ऐसे कुछ नंबर हैं जिसके यूनिट प्लेस में आपके जीरो हैं. और ऐसे कुछ नंबर हैं जैसे कि आपकी सपोज 15, 25, 35, 45 एंड शो ऑन. तो ये हो गया हमारे टू कैटेगरीज. और दूसरे कैटेगरी के ऐसे नंबर हैं जिसके यूनिट प्लेस में ना ही जीरो है ना ही 5 है. जैसे कि सपोज करते हैं ये 27 है. ओके, मैं एक नंबर और लेता हूँ. सपोज ये 18 है. ठीक है, ये 73 है, ये 84 है. ऐसे टाइप के नंबर्स हैं. तो यहाँ पर हम हर कैटेगरी के नंबर को डिस्कस करेंगे और उसके ट्रिक्स को देखेंगे कि कैसे आप फास्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं. तो सबसे पहली बात, जिनको भी दोज हु नो द मल्टीप्लिकेशन टेबल फ्रॉम 2 to at least 10 दे नो द स्क्वायर ऑफ व्हाट अप टू द 10, स्क्वायर ऑफ द नंबर अप टू 10. सपोज एक बच्चा या कोई जैसे कि 2 से लेकर 10 तक के टेबल उसे पता है. इसका मतलब कि उसको अननोइंगली 1 से लेकर 10 तक की स्क्वायर ऑलरेडी पता
है। जैसे कि 2 के टेबल में 2 की स्क्वायर अगर करें तो क्या होगा, स्क्वायर का मतलब क्या, सेम नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना। 2 की स्क्वायर मतलब 2 इंटू 2 4, तो जब वो 2 की टेबल बोल रहा है तो 2 के स्क्वायर ऑलरेडी उसके पास मौजूद है। 3 की टेबल अगर उसको आता तो 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, इस तरह से 9 9 जा 81 और 10 10 जा 100। तो ये आपको अगर कोई स्टूडेंट है जिसे एटलीस्ट 10 तक की टेबल मालूम है तो वो 10 तक की स्क्वायर तो इजीली आप उसको पता होगा। तो हम लोग यहाँ जो स्पेशली डिस्कस करेंगे 10 के बाद वाले नंबर डिस्कस करेंगे, इसलिए मैंने बोला कि 2 डिजिट नंबर। अच्छा, सबसे पहली कैटेगरी देखिए, जैसे कि ये वाली कैटेगरी है, इसका ट्रिक्स क्या है, ठीक है, इसका ट्रिक्स क्या है। जैसे ये आपकी जीरो वाली जोन है, ये बहुत ईजी है। इसको करने का तरीका क्या है, जो आपकी 10 प्लेस के डिजिट है, 10 प्लेस के डिजिट है, उसको आप डबल कर दो, मल्टीप्लाई कर दो क्या, उसी नंबर के साथ। तो जैसे ये 1 है तो हम क्या करेंगे, 1 इंटू 1 कर देंगे, और ये जो आपकी जीरो है इसको डबल जीरो यहां पर डाल देना, 2 जीरो। इसका मतलब कि 10 की जो स्क्वायर है वो आ जाती है हमारी 100। क्लियर है आपकी। और एक बार देखिए दूसरे नंबर से समझते हैं, अगर हम 20 की स्क्वायर निकालना चाहें तो क्या करेंगे, ये वाले जो 10 प्लस की डिजिट है उसको उसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो ये हो जाती है 2 2 जा 4, और ये जो जीरो है इसको 2 जीरो यहां डाल दिए, कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। अगर 30 की स्क्वायर हमें निकालना है तो हम क्या करेंगे, 3 को 3 के से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये तो आसान है, क्योंकि 10 तक की मैं यहाँ पर बता रहा हूँ कि जिसे 10 तक की टेबल कम से कम एटलीस्ट तो मालूम होना चाहिए, तभी वो एक स्टेप आगे बढ़ के स्क्वायर नंबर सीख रहा है। हाँ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 3 है तो 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है, 3 3 जा 9, ओके। और ये जो 2 जीरो यहाँ पर 2 जीरो लगा दीजिए। तो इस तरह से आपकी जो जीरो वाले नंबर हैं, जिसके यूनिट प्लेस में जीरो है, उसकी स्क्वायर हम इस तरह से निकाल सकते हैं। और एक नंबर जैसे आपकी 40 है तो 40 को हम क्या करेंगे, 40 के स्क्वायर अगर निकालना चाहें तो ये जो 10 प्लेस के डिजिट है उसे आप उसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दो। ये क्यों कर रहे हैं, ताकि यूनिट प्लेस आपकी जो ये डिजिट है ये सिंगल डिजिट मैं ले रहा हूं। सिंगल डिजिट को क्योंकि 10 तक के मल्टीप्लीकेशन टेबल आता है, मतलब कि ये सिंगल डिजिट को मल्टीप्लाई कर पाएगा। 4 इंटू 4 दैट इज 16, और ये जो जीरो है इसको 2 जीरो आप लगा देंगे। तो मैं समझता हूं कि आपको जो कोई भी नंबर ऐसे डबल डिजिट हो जिसके यूनिट प्लेस में जीरो हो, इससे आपको स्क्वायर निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं होता होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं किसी भी नंबर का स्क्वायर जिसकी यूनिट प्लेस में जीरो होते हैं। क्लियर है। तो ये हो जाता है हमारा पहला कैटेगरी, ये खत्म हो गया। दूसरे कैटेगरी में देखते हैं, एक बार से और रिवाइज कर देता हूं। देखो, किसी भी नंबर की यूनिट प्लेस में अगर जीरो है, उसकी स्क्वायर निकालने के लिए 0 1 जा 0 2 जा 0 3 जा मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। जो लेफ्ट साइड में डिजिट होती है उसको आप उसी नंबर से एक बार मल्टीप्लाई कर दो। क्योंकि हम स्क्वायर निकाल रहे हैं तो जीरो को 2 बार यहां पर लिख दो। 3 है तो 3 को 3 के साथ क्योंकि स्क्वायर है ना, तो यूनिट जो ये पहला डिजिट है इसे आप उसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दो। और ये जो स्क्वायर है जीरो को आप 2 बार यहां पर लिख लो। ये भी जब अगर 40 की स्क्वायर है तो 4 को आप 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दो 16, और ये जीरो है तो 2 बार जीरो लिख दो। 40 की स्क्वायर 1600। क्लियर है। दूसरी कैटेगरी में जो आते हैं, इसकी स्क्वायर देखिए, जिसकी यूनिट प्लेस में आपकी 5 हो, जिसकी यूनिट प्लेस में 5 हो, इसकी स्क्वायर हम कैसे निकालेंगे, वेरी इजी ट्रिक्स। हाँ, ये विद इन आप 2 और 3 सेकंड आप निकाल सकते हो। सबसे पहली बात देखिए, ये जो है आपकी पहला वाला आपके 10 प्लस का डिजिट जितना है उससे एक ज्यादा नेक्स्ट नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए। 1 है तो 1 इंटू 2 दैट इज आपकी आ जाती है यहां पर 2। और ये जो 5 है, 5 की स्क्वायर कितना, हर वक्त 5 की स्क्वायर 25 होगी, तो यहां पर आप 25 जोड़ दिया। क्लियर, ओके। 15 की स्क्वायर 225। दूसरे वाले नंबर को समझते हैं, ये क्या है 2 को हम क्या करेंगे, एक इंक्रीज करके मल्टीप्लाई करेंगे। 2 है तो 2 इंटू 3 करेंगे, 2 इंटू 3 दैट इज 6। और 5 है, 5 की स्क्वायर क्या आती है 25, तो हर वक्त आप 25 यहां पर डालेंगे। कहने का मतलब ये है कि जितने भी नंबर जिसकी यूनिट प्लेस में 5 होते हैं, आप क्या करेंगे, उसके जो लेफ्ट साइड में नंबर है 10 प्लेस में जो नंबर है उसको एक इंक्रीज करेंगे, जितने भी नंबर है उससे एक ज्यादा करके मल्टीप्लाई कर देंगे और 25 उसके पीछे लगा देंगे, बस हो गए। जैसे यहां पर 3 है, 3 के बाद क्या आता है 4, तो 3 इंटू 4 दैट इज 12, और ये जो 5 है यहां पर 25 लगा देंगे। ठीक है, 12 25 इज द स्क्वायर फॉर द नंबर
35। इसी तरह से 45 अगर है तो क्या करेंगे, यहाँ पर 4 है, 4 से एक इंक्रीज करेंगे, 4 इंटू 5 दैट इज 20, यहाँ पर लिखेंगे 20 और 5 की स्क्वायर 25। तो ये 5 की स्क्वायर करने की जरूरत नहीं, हर वक्त ये 25 आपको लास्ट में लगा देना है। मैं अब एक यहाँ पर बताता हूँ आपको 95 की स्क्वायर। अगर 95 की स्क्वायर निकालनी हो तो क्या करेंगे, 9 की एक इंक्रीज नंबर 9 इंटू 10, ओके दैट इज हो जाती है आपकी 90 और ये 5 है तो यहां पर 25 लगा देंगे। वेरी क्लियर, ठीक है। मैं एक और नंबर लेता हूं 75, ठीक है। मैंने 75 तो नहीं लिया, 75 की अगर स्क्वायर निकालें तो 7 के एक इंक्रीज कर देंगे, 7 इंटू 8, जो भी नंबर होगा उसके नेक्स्ट नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 7 इंटू 8 56, ओके यहां पर हो जाती 56 और ये 25 को यहां लगा देंगे। तो 75 की स्क्वायर 5625, 5625। तो इस तरह से कोई भी नंबर जिसकी यूनिट प्लेस में 5 है, इस तरह से हम निकाल सकते हैं। मजा आ रहा है ट्रिक्स? तो ये आपकी फर्स्ट कैटेगरी जो यूनिट प्लेस में 0 हो, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, जो 10 प्लेस का डिजिट होता है उसको उसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और 2 0 ऐड कर देते हैं, ठीक है। ऐसे वाले सेकंड कैटेगरी जिसकी यूनिट प्लेस में 5 हो, उसके क्या करते हैं, 10 प्लस के नंबर जितने भी होते हैं उससे एक इंक्रीज करके उसके साथ मल्टीप्लाई करना। यहां पर क्या करना है, जो नंबर है सेम उसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना, पर यहां पर क्या करना, एक नंबर आगे करके मल्टीप्लाई। 3 है तो 3 इंटू 4, 4 है तो 4 इंटू 5, 9 है तो 9 इंटू 10, इस तरह से हम करेंगे और लास्ट में 25 को हम डाल देंगे। एवरी नंबर में आपका 25 होगा जिसकी यूनिट प्लेस में 5 हो। थर्ड कैटेगरी ये सबसे इंपॉर्टेंट और ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है, ठीक है। ये दोनों बहुत ही इजी है, थर्ड कैटेगरी जो है थोड़ा डिफिकल्ट होता है, लेकिन फिर भी देखिए ये क्या है, मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं। ये 27 की स्क्वायर, 27 की स्क्वायर। आप इसको करने का क्या तरीका है, देखिए आप इसकी स्क्वायर कीजिए, क्योंकि आप 27 का डायरेक्ट तो मल्टीप्लाई नहीं कर पाएंगे, तो वैदिक मैथ में ऐसा ट्रिक्स है कि उसको बहुत आसान बना दिया जाता है। इसकी पहले यूनिट देखिए आपकी 10 प्लस की स्क्वायर। एक चीज और बताता हूं, बाकी मैथ्स में जो जनरल मैथ्स हैं हम जाते हैं फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, लेकिन वैदिक मैथ में हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, ये डिफरेंस है। आप 1 अटेम्प्ट में आंसर लिख सकते हैं। तो यहां पर इसकी स्क्वायर करेंगे 4 और इसकी स्क्वायर करेंगे यहां पर 7 की। तो पहले देखिए ये डिजिट की स्क्वायर करें 2 स्क्वायर मतलब 2 2 जा 4 और ये 7 की स्क्वायर 7 7 जा 49 लिख दिए। बस ये पहला स्टेप है, 2 स्टेप में खत्म हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, ये जो नंबर है 2 इंटू 7 इंटू 2, ठीक है, इसे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 2 7 जा 14, 14 2 जा 28, 28 है। आप क्या करेंगे, एक नंबर छोड़ के राइट साइड से एक नंबर छोड़ के आप 28 यहां इस तरह से लिख देंगे। उसके बाद ऐड करेंगे, ये मैं समझाने के लिए कर रहा हूं, इसको आप ओरली कर सकते हैं, ठीक है। इसकी स्क्वायर और ये दोनों मल्टीप्लाई जो करना है 3 नंबर को, देखिए 2 इंटू 7 इंटू 2, ये जो इंडिविजुअली आप मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरह से आप उसके बाद एक डिजिट छोड़ के राइट साइड से 1 डिजिट के बाद आप उस नंबर को लिखिए, उसके बाद ऐड कर दिए। ये सब आपके ओरली हो जाएंगे, ठीक है। 8 4 जा 12, 4 2 6 1 7, 729 इज द स्क्वायर ऑफ 27। क्लियर है? अच्छा, और एक एग्जांपल, एक कोई भी एग्जांपल, मैंने यहां पर कुछ नंबर्स लिखे हैं, कोई भी नंबर आप ले लो, किसी प्रकार के भी नंबर ले लो। मैं एक 18 लेता हूं, ठीक है। 18 की स्क्वायर करना है, तो मैं क्या करूंगा, इसकी स्क्वायर और इसकी स्क्वायर पहले करूंगा सिंगल में। अच्छा, यहां पर क्या देखिए 1 की स्क्वायर 1, 8 की स्क्वायर 8 8 जा 64, तो मैं यहां पर 64 लिख दिया। इतना लिखना तो सभी को आएगा, क्योंकि मैंने पहले बताया था कि एटलीस्ट 10 तक की टेबल तो आने ही चाहिए। तो उसके बाद देखिए ये हो गया। उसके बाद 1 इंटू 8, 8 इंटू 2 दैट इज 16, ये एक लाइन सबको मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद क्या करना है, करेक्ट, एक डिजिट छोड़ के आपको वो नंबर को लिखना है। तो यहां पर आप एक डिजिट छोड़ के लिख दीजिए, ठीक है। ये हो गया आपकी 4, ये 6 + 6 12 और ये हो जाता है 3। तो ये मैं आपको एक एक करके बता रहा हूं, आप इसको ओरली भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आता है 324 18 के स्क्वायर। और जैसे एक नंबर मैं छोटे नंबर एक लेके बताता हूं, थोड़ा आपको यहां पर सपोज करें कि ये 13 के स्क्वायर है, सपोज करें 13 के स्क्वायर। यहां पर एक स्मॉल ट्रिक्स काम करती है। जैसे आप यहां पर देखिए 1 की स्क्वायर आप 1 लेंगे। अच्छा, इसके बाद ये 3 की स्क्वायर क्या होती है 9, लेकिन
थोड़ा ध्यान देंगे, लेकिन यहां पर आप 9 नहीं लिख पाएंगे। आप क्या लिखेंगे? 09, क्योंकि हम स्क्वायर बना रहे हैं, मतलब जो भी आपकी यूनिट प्लेस की जो स्क्वायर नंबर होगी, अगर अब सिंगल डिजिट आ रहा तो 0 बना के उसका डबल डिजिट करना पड़ेगा। जैसे यहां पर 7 7 जा 49, 8 8 जा 64, डबल डिजिट ऑलरेडी था तो मैंने डबल डिजिट लिखा। लेकिन अगर कहीं पर सिंगल डिजिट आ रहा तो उसे आप 0 ऐड करके, इसके लिए देखिए 1 की स्क्वायर 1 और ये 3 की स्क्वायर जो 09 आप बना के लिखेंगे। 3 की स्क्वायर 9 है, इसे 09 करेंगे। ठीक है, डबल डिजिट में लिखना है। जब भी आप यूनिट प्लेस को स्क्वायर करें, अगर वो सिंगल डिजिट होता है तो आपको डबल डिजिट करके लिखना, ये आपको थोड़ा माइंड में रखना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे? सेकंड स्टेप में ये नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे। 1 × 3 × 2, 1 3 जा 3, 3 2 जा 6, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 6। ये हो जाते हैं 9, ये 6, ये 1, 169, ये हो जाती है 169, 13 की स्क्वायर। क्लियर है? तो इस तरह से हम किसी भी नंबर, जितने बड़े से बड़े नंबर हो आपकी डबल डिजिट का, तो उसको हम निकाल सकते हैं। और मैं समझता हूं जितने भी आपको यहां पर जो डबल डिजिट के अंदर जितने भी प्रकार के वैरायटी के टाइप्स के नंबर होते थे, सभी मैंने करके दिखा दिया। आप इसे ट्राई करना। 0 वाले नंबर तो आप आराम से कर सकते हो, 5 वाले नंबर तो आराम से कर सकते हो, लेकिन ये नंबर में थोड़ा ट्रिक्स लगेगा। लेकिन फिर भी ये आपकी जो जनरल कैलकुलेशन से आपकी 1/10 टाइम आपका लगेगा। ठीक है, जितना टाइम लग रहा था उससे आपका 10 हिस्सा का 1 हिस्सा टाइम में आपका कंप्लीट हो जाएगा, अगर आप इसको प्रैक्टिस करते हैं तो। प्रैक्टिस मैक्स मैन परफेक्ट, अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तो फिर प्रॉब्लम होगा। आपको ये सारी चीज़ याद रखनी पड़ेगी और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, तो एक बार मैं और एक बार रिवाइज कर देता हूँ। जस्ट जैसे किसी नंबर, देखिए हम जो ट्रिक्स यहाँ पर निकाल रहे हैं आपकी स्क्वायर निकालने की, तो सबसे पहला टाइप के नंबर होते हैं जिसके यूनिट प्लेस में 0 हो, दूसरे टाइप के नंबर जिसके यूनिट प्लेस में 5 हो, थर्ड टाइप के कैटेगरी के नंबर जिसके यूनिट प्लेस में ना 0 ना 5 हो। बस इसके अलावा और कोई भी नंबर एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तो पहला कैटेगरी जो होते हैं जिसके यूनिट प्लेस में 0 होते हैं, उसके हम क्या करते हैं, जो लेफ्ट साइड में नंबर होते हैं या आपके 10 प्लस में नंबर होते हैं उसकी स्क्वायर करते हैं और लास्ट में हम 2 0 डाल देते हैं। जैसे 2 है तो 2 को स्क्वायर किया 4 और ये 0 के बदले 2 0 डालेंगे। 3 के स्क्वायर के 9, डबल 0 डाल देंगे। ऐसे होते हैं। तो ये हो जाते हैं हमारा आपकी जो जितने भी स्क्वायर नंबर जिसके यूनिट प्लेस डिजिट में 0 और 5 होते हैं। ठीक है, क्लियर है? तो इस तरह से हमारा हो जाता है क्या, 0 वाले नंबर और 5 वाले नंबर, और ये हो जाते हैं हमारे विदाउट 0 और 5। तो इसमें क्या करना है, जैसे विदाउट 0 और 5 अगर होते हैं, किसी भी नंबर इस तरह का अगर एग्जिस्ट करते हैं, तो आप क्या करेंगे, लेफ्ट वाले जो नंबर है आपके 10 प्लस के नंबर को स्क्वायर करेंगे और आपकी यूनिट प्लेस नंबर को स्क्वायर करेंगे और लिखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, ये सारे नंबर को 2 × 7 × 2 मल्टीप्लाई करके एक डिजिट छोड़ के आप उसे नंबर को लिखेंगे। उसके बाद आप उसे ऐड कर देंगे, जो आंसर निकलेगा वो आपकी स्क्वायर नंबर होंगे। तो ये तो मल्टीप्लीकेशन से इजी ही होगा। ठीक है, और अगर आपको यूनिट प्लेस डिजिट को स्क्वायर करने के बाद अगर देखते हैं कि वो सिंगल डिजिट निकल रहा, तो वहां थोड़ा ट्रिक्स आपको अप्लाई करना पड़ेगा। जैसे यहां पर तो आपको क्या, डबल डिजिट बना के लिखना। जैसे यहां पर अगर 12 होता तो 2 2 जा 4 होता, आप यहां पर 04 लिखते हैं। 3 की जगह में अगर 3 3 जा 9 है तो आप क्या लिखेंगे, 09 लिखेंगे। तो इस तरह से हमारा जितने भी आपकी जो नंबर थे, मेरा यहां पर मेन मकसद था कि टू फाइंड द स्क्वायर ऑफ 2 डिजिट नंबर। मैं 2 डिजिट नंबर को फोकस कर रहा था अप टू 1 आपकी 11 से, स्पेशली 10 से लेकर के 99 तक। तो यहां पर मैं समझता हूं जितने टाइप के नंबर थे वहां पर मैंने आपको बता दिया और इसमें शायद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये वैदिक मैथ का पहला ट्रिक्स था। अगर आपको अच्छा लगता है वीडियो तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, और इसके आगे की जो आपकी वीडियो मैं अपलोड करूं इसकी सेकंड ट्रिक्स के लिए, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली जो भी वीडियो हो, नया वीडियो, आपको उसकी नोटिफिकेशन मिले। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट नई ट्रिक के साथ। टिल देन बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू वेरी मच।